everyone, welcome back to my channel Biology with Priyanka. So, on the fourth part of the chapter Heredity and Evolution, we have reached to the middle part, right? We have reached here on the middle part of the chapter Mendel's experiment. Before going to the Mendel's experiment, let us know about something about Mendel, right? Before starting, don't forget to like and subscribe my channel and pressing the bell icon, right? His full name is Gregor Johann Mendel. He was born in Czech Republic, and now initially he has taken his studies in the local schools. Then he has gone for the theological studies. He has made his interest in mathematics, botany, natural science. And then he has also given some teaching exams, but he has failed. For first times he has failed his teaching certification exam. Then for further studies, for the re-examinations, he has gone for the Vienna. There he attended some lectures. वहाँ उन्होंने कुछ लेक्चर्स अटेंड किए अबाउट नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, और उनका इंटरेस्ट जो है वो जागा किसमें, उनका इंटरेस्ट आया नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स रिसर्च में, जहाँ से जब वो ब्रून में वापस आए उन्होंने टीचिंग एग्ज़ाम देने की जगह पर ऑप्ट किया कि वो प्राइवेटली जो है स्टूडेंट टीचिंग ऑप्ट करेंगे और रिसर्च में अपना हाथ लगाएंगे, राइट. सो ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क. आफ्टर कमिंग बैक ही हैज़ जॉइंड अ मोनेस्ट्री वेयर ही वर्कड एज ऑस्ट्रियन मॉन्क. और बाद में उन्होंने काम किया किस पर, मोनेस्ट्री में ही 2 हेक्टेयर गार्डन में पी प्लांट पे उन्होंने काम करना शुरू किया. उन्होंने अपने काम को और अपने डेटास को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया एज हिज वर्क प्लांट हाइब्रिड्स इन जर्नल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ब्रून सोसाइटी एंड नेचुरल हिस्ट्री. एक जर्नल है, राइट, जिसमें रिसर्च पेपर्स जो है वो छपते हैं अलॉन्ग विद देयर डेटा, और वहाँ पर इन्होंने अपना काम प्लांट हाइब्रिड के नाम से छापा. But what happened at that time, his theory has failed to be known, right, to get the recognition at his time. But after his death he get his recognition, and he was known as father of genetics. Okay, he has taken pea plant, scientifically known as Pisum sativum. Pea plant, why he has taken, there are some reasons behind it. Because pea plant is bisexual, it have both kind of flower, male and female flowers, right? So there is no need to do cross pollination. Then predominantly it can self fertilize, it can produce the same character many a time, क्योंकि वो self fertilize भी कर सकते हैं. देन शॉर्ट लाइफ साइकिल, ईजीली ऑब्जर्व करना आसान रहेगा ग्रोथ को एज वेल एज रिप्रोडक्शन को, क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, लाइफ साइकिल बहुत जल्दी ख़त्म होती रहती है, राइट. देन ईजिली अवेलेबल, ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी ग्रोन इन मोनेस्ट्री गार्डन, सो हेंस इट इज़ ईजिली अवेलेबल. So he have taken 34 of such pea plants and started his experiment on 7 different characteristics. So for the same plant, pea plant, he have taken 7 characteristics: length of the stem, color of flower, position of flower, color of seed, shape of seed, shape of pod मतलब जैसे कि मटर का जो छिलका होता है वो, और color of pod, right. These 7 characters he have taken. Now because plants are also dominant like human beings, so for every character it have a other copy, right. So that's why it is known as contrasting, क्योंकि हर कैरेक्टर की कॉपी होती है. जब लेंथ ऑफ द स्टेम लिया तो लेंथ ऑफ द स्टेम में भी 2 तरह के कैरेक्टर्स थे, टॉल और ड्वार्फ. टॉल मतलब बड़ा, ड्वार्फ मतलब छोटा. वॉयलेट और वाइट कलर ऑफ फ्लावर में, एक्जियल और टर्मिनल, लीफ के बीचों बीच या फिर उसके लीफ के साइड में टर्मिनल. देन कलर ऑफ सीड, येलो और ग्रीन. शेप ऑफ द सीड, गोल होंगे या फिर सिकुड़े हुए होंगे, रिंकल्ड. देन शेप ऑफ पॉड, इन्फ्लेटेड यानी फूले हुए होंगे या दबे हुए होंगे, कंस्ट्रक्टेड. देन कलर ऑफ पॉड, ग्रीन भी हो सकता है, और जो आध पका सा येलो होता है वो कलर भी हो सकता है, राइट. Then he has started his experiment and named it as monohybrid cross. So whatever the progeny will be formed, यानी जो भी प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग बनेगा पहले क्रॉस से वो मोनोहाइब्रिड होगा.
क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई जा रही है, यानी दो अलग अलग प्लांट्स पी के लिए जा रहे हैं, मटर के लिए जा रहे हैं, तो एक हाइब्रिड बनेगी। और एक ही कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवाया जा रहा है तो मोनोहाइब्रिड। और वो कैरेक्टर क्या है, वो सिंगल कैरेक्टर है, हाइट ऑफ द प्लांट, राइट, हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट हाइट। सो पेरेंटल जनरेशन हम देख लेते हैं। पेरेंटल जनरेशन का फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप यानी जो फिजिकली वो दिखते कैसे हैं, जैसे कि टॉल लिया और एक डॉफ लिया। बाद में फिर जीनोटाइप भी पता चलते हैं। जब उन्होंने टॉल और डॉफ प्लांट अपने गार्डन में ग्रो किए तो उन्हें एक टॉल प्लांट मिला। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको आगे करा और फिर उससे पता चले कि जीनोटाइप क्या थे। जब उन्होंने एक टॉल और डॉफ प्लांट लिया तो वो टॉल और डॉफ प्लांट के जीनोटाइप क्या रहे होंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अच्छा, ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस नहीं है। ओके, सो इनिशियली पेरेंटल प्लांट जो है वो प्योर लिए गए हैं। अब वो हर पेरेंट प्लांट जो है वो ऑफस्प्रिंग में अपने जीन ट्रांसफ़र करने से पहले उन्हें हाफ करता है, आधा आधा करता है, तो गैमेट्स बनेंगे। सो गैमेट्स बने, कैपिटल टी में से दो गैमेट्स पॉसिबल हैं, पर एक ही तरह के। अगर अगला भी गैमेट में बनाऊँ तो कैपिटल टी ही आएगा, इसमें से भी अगला जो गैमेट बनेगा वो भी स्मॉल टी ही आएगा। दो ही गैमेट पॉसिबल हैं। अब इनका क्रॉस करवाएंगे, ये टी से क्रॉस हुआ तो ये स्मॉल टी आ जाएगा। तो हमारे पास F1 जनरेशन क्या आई, यानी पहली जो प्रोजेनी है वो क्या आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज़। और वो प्लांट जो है वो कैसा उगा था, टॉल उगा था। ओके, अब मेंडल जब उसे ग्रो कर रहे होंगे अपने गार्डन में तो उन्होंने यही पाया होगा कि हाइट कैसी है। उनको थोड़े ना ये दिख रहा होगा कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, या ना कि वो ये कैपिटल टी आया है। तो उनको तो बस वो टॉल ग्रो हुआ दिखा होगा। तो फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इस चीज़ के लिए, फिर उन्होंने देखने के लिए कि एक्चुअली जो मेरा प्रोजेनी आया है F1 जनरेशन में वो प्योर है या फिर इस तरह से हेट्रोजाइगस है, उन्होंने आगे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया इसी चीज़ का। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इसी ऐसे ही प्लांट्स जो भी प्रोजेनी बनी थी उन्हीं प्लांट्स का क्रॉस करवा दिया। तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं। अब इनमें पॉसिबल गैमेट क्या है, एक तो कैपिटल टी आ जाएगा, राइट, एक जो दूसरा गैमेट है वो क्या आएगा, स्मॉल टी। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी जब वो गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। सो इस तरह से दो गैमेट बन जाएंगे। दो अलग अलग गैमेट्स पॉसिबल है। यहाँ एक ही था इसलिए एक ही बार क्रॉस करवा दिया, यहाँ पर दो अलग अलग हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज मेंडल इज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय हिज मैथमेटिक्स, ही हैज़ यूज्ड दिस पुनेट स्क्वायर, जीरो कांटे जैसा दिख रहा है ना। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी एक आया था, मतलब एक प्लांट ऐसा था, राइट, फिर दूसरे प्लांट के इस तरफ रख लिए, एक प्लांट के इस तरफ रख लिए। ओके, और क्रॉस करवाया गया। क्रॉस जैसे ये जो है क्रॉस होगा। ओके, अब आप देख सकते हैं ये एक फीमेल प्लांट है, ये एक मेल प्लांट है। अब इनके ये हमने अलील अलग गैमेट्स जो अलग अलग रख लिए हैं इस साइड में। अब हम इनका क्रॉस करवाते हैं, इसको और इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी। इसको और इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको और इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी। नाउ अब जो हम इससे डेटा आया उन्हें कलेक्ट करके उन्होंने कुछ रेशियोज़ निकाले, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, जब उन्होंने फिनोटाइप रेशियो निकाला तो उन्हें पता चला कि क्योंकि उन्होंने जब प्लांट ग्रो किए होंगे तो फिनोटाइप रेशियो ही निकला होगा। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने 4 प्लांट उसमें से ग्रो किए तो उन्होंने देखा 3 जो है वो क्या थे, 3 के रेशियो में जो प्लांट्स थे वो बड़े थे और कुछ 1 के रेशियो में प्लांट ऐसे थे जो कि छोटे हैं, राइट। अब अगर हमारा F1 प्रोजेनी जो था वो पूरा टॉल था, यानी सारे के सारे टॉल ही होते, तो ये स्मॉल टी कहाँ से आता और ये डॉफ बन कैसे जाता। और अगर डॉफ बना है तो F1 प्रोजेनी में ज़रूर प्योर करेक्टर टी नहीं है, हेट्रोजाइगस फॉर्म है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो उन्होंने ये डिड्यूस किया कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी बना हुआ होगा, और जो ये मेरी सेकेंड जनरेशन है उसमें भी जीनोटाइप में सारे जो टॉल हैं वो प्योर टॉल नहीं होंगे। ओके, तो एक डॉफ है एक टॉल है। जब एक डॉफ और टॉल का तो हमें जीनोटाइप पहले से पता था कि वो कैपिटल टी होगा दोनों में और डॉफ में स्मॉल टी होगा, राइट। डॉफ का पता चल गया, इसका पता चल गया, तो दूसरे वाले का क्या रहा होगा,
राइट। दूसरा तरह का जो कैरेक्टर है वो क्या रहा होगा, ये, जो कि फिनोटिपिकली तो टॉल ही दिखते हैं लेकिन जीनोटाइप इनका अलग है। सो दिस इज प्योर होमोजाइगस कैपिटल T टॉल, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, दिस इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस टॉल। ओके, ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल हैं। F1 प्रोजेनी में इनके होने की वजह से ये कैरेक्टर F2 जनरेशन में रीअकर होता है, दोबारा से आता है, राइट। यही डिड्यूस जो है मेंडल कर पाए कि F1 जनरेशन में ज़रूर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर जो है वो कैसा आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है, यानी हेट्रोजाइगस है। लेकिन फिनोटिपिकली ओनली टॉल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग, राइट। लेट्स सी व्हाट ही डिड्यूस, how he deduced. Mendel had deduced two laws of inheritance, law of dominance and law of segregation. Okay, according to this law in a heterozygous condition, तो जब भी heterozygous condition होगी, भाई ये दोनों तो मैंने homozygous लिखी हुई है, heterozygous मतलब कैपिटल T और स्मॉल t, तो जब भी heterozygous condition होगी, राइट, सो रिसेसिव फैक्टर, तो इसमें से रिसेसिव कौन है, स्मॉल t रिसेसिव है, जो कि डॉर्फ बताता है, राइट। Small t recessive है, recessive factor is unable to express itself in presence of a dominant factor. तो recessive factor अपने आप को represent नहीं कर सकता dominant factor में, इसीलिए इसको हम dwarf नहीं कहते, इसको हम tall कहते हैं। ओके, ये क्या है, tall है, और ये tall और dwarf के बीच में भी कुछ नहीं है, ये tall है केवल, राइट। That's Mendel deduced. Okay, so this is law of dominance. Then law of segregation. According to this law, the characteristics of an organism are determined by the internal factor. ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिनोटाइप आता है यानी टॉल या डॉफ आता है, वो इंटरनल कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं, इंटरनल कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं। और वो इंटरनल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जीन्स, जो कि पेयर में होती हैं, राइट। जैसे कि टॉल के लिए कैपिटल T या कैपिटल T स्मॉल t, और डॉफ के लिए स्मॉल t, बट ऑलवेज इन पेयर। ओनली वन ऑफ सच फैक्टर फ्रॉम पेयर, इस पेयर में से केवल एक ही फैक्टर जो है, ओनली वन ऑफ सच फैक्टर कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल जीन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सो जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर हुआ था गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो दोनों एलील्स में से केवल एक फैक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है एक गैमेट के अंदर, राइट। ओके, सो एक गैमेट में कभी भी दोनों कैरेक्टर एक साथ नहीं आ सकते, एक गैमेट में केवल एक ही एलील आएगी। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दैट्स द डिडक्शन ऑल बेस्ड, राइट। ओके, सो फिनोटिपिकली जो मिक्सिंग हुई कैरेक्टर की, उसमें भी फिनोटिपिकली जो मिक्सिंग हुई कैरेक्टर की, उसमें भी जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट वाले का ही आता है, ओके, डोमिनेंट पेरेंट का ही शो होता है, राइट। और जब भी गैमेट बनते हैं तो वो जो दो कैरेक्टर हैं वो सेपरेट होते हैं और उनमें से केवल एक ही कैरेक्टर जाता है। दिस वाज द डिडक्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, और वी कैन से एप्लीकेशन, हाउ वी कैन फाइंड द ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग, वी विल डू दैट इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।